Greetings of the day, my brothers and sisters. I want to share few sayings of Bible which can be very beneficial for us to lead our lives. Nowadays, nobody is bothered to lead their lives as we all are very busy in our daily routine works, earn bread and butter for the families. But I think we should sometimes think about what are we doing in our daily life and how we are leading our lives and what we are teaching to our children. I just want to share few things from the Bible which I think people should follow, and we all should know what is written in the Bible first. We as Christians should lead our lives and supposed to follow the Christ words and sayings. So here Bible says something very good which I believe in. It says, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes, a daily food. If you say to them, 'Go in peace, keep warm and well fed,' but does nothing about their physical needs, what good is it? In same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead." The saying "talk is cheap" comes to mind. It does not know good to wish a person well when you have the resources to help, yet choose not to. Good intentions only go so far. Be purposeful to take action and physically help a person who needs it when you are able to. When you encounter a homeless person on the street, instead of saying you will pray for them, choose to go and physically buy them a meal as well. Heal the sick, cleanse those you have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Perhaps we can't literally raise the dead, but we can certainly choose to give freely to others. Have you ever lent something to someone who desperately needed it? Instead of expecting them to pay it back, release them from that burden and choose to give it freely. Everything we have received freely from God Himself. It means that God has given us power to support each other, to distribute, to share love with each other. हम सभी को अपने आप में एक दूसरे के साथ में प्रेम और सद्भावना रखनी चाहिए, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के साथ किया। हम सबों को प्रभु ने ये सिखाया कि हम प्रभु में एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहें। जैसा उसने सब अपने सबों से प्रेम किया, वैसा ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप पर, उसी तरह से हम भी उसके इस आशीष का आदर करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं कि हम इस चीज़ के काबिल उसने हमें बनाया कि उसने अपना रूप, अपना रंग हमें दिया, और हम उस रूप और रंग को आगे बढ़ाते हुए इस नेचर को, इस दुनिया को और खूबसूरत बना सकें। परंतु आजकल मैं देखती हूँ कि लोग एक दूसरे के लिए बहुत सी ऐसी बातें, ऐसी भावनाएं रखे हुए हैं, अपने दिलों में नफ़रत रखे हैं कि तुम उस धर्म से हो, हम इस धर्म से हैं,
तुम उस भगवान को मानते हो, हम इस गॉड को मानते हैं, तुम अल्लाह को मानते हो, हम भगवान को मानते हैं। मेरे हिसाब से परमेश्वर, गॉड ऑलमाइटी, हम सबका एक है। हमें बाइबल से भी यही मिलता है और दूसरे जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमको यही सीख मिलती है कि परमेश्वर, द गॉड माइटी इज़ वन। परंतु कुछ लोग अपने पर्सनल गेन को लेकर के हम सबों में आपस में इस प्यार और सद्भावना को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ में नफ़रत बनाने की प्रेरणा देते हैं। मैं अपने आप में इस बात को महसूस करती हूँ कि कुछ लोग काफ़ी दिनों से कुछ नफ़रत भरी बातें समाज में कह रहे हैं। उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस को अपलोड किया और उसमें कुछ ऐसी बातें कही जो कि सही नहीं हैं, अभद्र हैं। और मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर वो मसीह को मानते हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं, तो क्या वो ये बातें जो कह रहे हैं सही है? क्या वो ये बातें जो कर रहे हैं सही है? क्या हम बाइबल में नफ़रत करना सिखाते हैं किसी से? क्या जो दूसरे ह्यूमंस हैं, क्या वो इस पृथ्वी पर रहने के अधिकारी नहीं हैं? क्या परमेश्वर ने उनसे प्यार नहीं किया? क्या परमेश्वर उनसे नफ़रत करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें कहीं ये बात नहीं सिखाती कि हम एक दूसरे ह्यूमन के लिए अपने दिल में नफ़रत रखें। उसने इस जगत से प्रेम किया तो हमें भी इस जगत से प्रेम करना है। हम कोई नहीं होते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा करें। क्या हमको किसी के लिए भी गलत कहने का अधिकार है? हम एक दूसरे के ऊपर या किसी और धर्म के लिए अगर हम लांछन कहते हैं, लांछन लगाते हैं, करते हैं, गलत करते हैं, क्या बाइबल हमें सिखाती है? हमारे इस देश में क्रिश्चियनिटी आज से नहीं है, सेंट थॉमस के समय से है। सेंट थॉमस हमारे इस देश में क्रिश्चियनिटी को लेकर आए। उन्होंने बाइबल के बारे में, क्राइस्ट के बारे में इस देश के लोगों को बताया। लोग तब से आज तक प्रेम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। क्या तब इन चीज़ों के लिए लोगों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति नफ़रत थी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दिलों में कभी एक दूसरे के लिए कोई नफ़रत नहीं रही। पर आज कुछ लोग जो अपने पर्सनल गेन को लेकर के, अपनी पर्सनल ख्वाहिशों को आगे बढ़ाने के लिए, वो बाइबल को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो क्रिश्चियनिटी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि वो एक दूसरे के ऊपर बढ़ से बढ़कर ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे हूँ और तू नीचे, जबकि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रभु उठे और हम गिरे। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी और को गलत कहें, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस देश में हम रहते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानें, उस देश के सरकार की हम इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और उनके बनाए हुए कानूनों को फॉलो करें। अगर हम कोई ऐसे कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं जिससे कि इस देश की सरकार या इस देश की हानि होती है, तो वो गलत है। हमारी बाइबल भी सिखाती है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के राजा के लिए प्रार्थना करो। तो अगर आज हम इस देश में रह रहे हैं या इस देश में हमें पैदा हुए हैं, इस देश के हम वासी हैं, तो इस देश की सरकार और इस देश के कानून को मानने के लिए हम बाध्य हैं। और हम कोई भी ऐसा कार्य करें जो कि इस देश के लिए नुकसानदेह है, तो हमारे इस देश में होने का कोई औचित्य नहीं है। क्या हम क्रिश्चियन होने के नाते अपने इस देश के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या हमें इस देश के कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए? मैं देख रही हूँ काफ़ी दिन से कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि इस देश के कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, नफ़रत की बातें फैला रहे हैं। मेरे उन सभी भाइयों से प्रार्थना है कि अपने इमोशंस को, अपने पर्सनल गेन्स को शांत करें
और उन बातों को आगे बढ़ाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्यार और सद्भावना आगे बढ़ाएं, ना कि इस तरह की बातें करें जिससे कि एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। एक हमारे भाई हैं श्री पन्ना लाल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से ये कहा कि चर्च, जो एंग्लिकन चर्च है, वो ख़त्म हो गया, जिसका कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पन्ना लाल जी को शायद ये नहीं पता, या इतनी नॉलेज शायद उनको नहीं है कि जो चर्च है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो कहते हैं कि इंडियन चर्च एक्ट रिपील हो गया, लेकिन रिपीलमेंट का जो इफ़ेक्ट है, क्या उनको पता है? क्या उन्होंने इसके लिए कोई स्टडी की है? तो पन्ना लाल जी, मैं आपसे सिर्फ यही विनती करूंगी कि अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें कि आप किसी फेथ के बारे में या किसी के रिलीजन के बारे में कहते हैं, तो आप इतना समझें कि आप पहले उसकी स्टडी करें और फिर उस बात को किसी प्लेटफॉर्म पे आके बोलें। मेरे हिसाब से पन्ना लाल जी, आपको अभी अधूरी नॉलेज है, उस नॉलेज को आप पहले गेन करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चर्च एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च आप सभी पढ़ें। मैं नहीं कहती कि ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मुझे पता है, ये तो हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल्स पर है, आप पढ़ें और इसको समझें कि क्या हमारे देश में हमारे धर्म को मानने की और हम हमारे धर्म को आगे फॉलो करने की, या हमारे धर्म को प्रचार और प्रसार करने की हमें किस तरह से आज्ञा मिली है। हमारे देश में कानून बना है कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक नियम और कायदा और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो बना हुआ है, और उसके अनुसार हमको उसे करने का अधिकार है। हम किसी को लालच दे के, पैसा दे के, या किसी को बहला कर, फुसला कर, उनको झूठी बातें कह के हम अगर कन्वर्जन करते हैं या अपने धर्म का प्रचार करते हैं या प्रसार करते हैं, तो वो गलत है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ के कि आप प्रीचिंग करें, हीलिंग करें, लेकिन मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि आप पैसा लेकर या कोई आदमी पैसे देकर किसी के इमोशंस को कंट्रोल करें या उनके इमोशंस को मैनिपुलेट करें। मैनिपुलेशन ऑफ इमोशंस या मैनिपुलेशंस ऑफ फीलिंग्स इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल्सो। जहाँ तक किसी को हीलिंग करने का सवाल है, तो हीलिंग बाइबल के अनुसार पैसे दे करके हीलिंग नहीं होती। मैं देखती हूँ बहुत सारी ऐसी साइट्स बनी हुई हैं, बहुत सारे भाई लोग इस तरह से अपने कामों को कर रहे हैं कि उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हैं जिनमें उन्होंने प्रार्थनाएं करने के लिए कुछ फीस रखी है। तो वो क्या बाइबल के अनुसार सही है? यहाँ ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए और उन्होंने इस देश में क्रिश्चियनिटी को फैलाया, लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, परंतु मेरे ख्याल से उन मिशनरियों ने अपना खून पसीना बहाया क्रिश्चियनिटी के लिए, पर उन्होंने कभी भी क्रिश्चियनिटी को ये नहीं किया कि उन्होंने किसी से पैसा लिया, या किसी को ये नहीं किया कि कोई लालच दिया कि तुम यहाँ पर हमारे रिलीजन को या हमारे किसी धर्म को गलत कहकर और उनको ख़राब कह के, उनकी रिलीजन की अवहेलना कर कर और उनको गलत बताकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बाइबल को बताया, बाइबल को बढ़ाया, क्राइस्ट को बताया, क्राइस्ट को बढ़ाया, और उन्होंने अपने जीवन में क्राइस्ट को अंगीकार किया और उसको लोगों को एग्जाम्पल के साथ में बताया। क्या हम उस चीज़ को अपने जीवन में कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि क्राइस्ट जैसा करते थे, क्या हम उस चीज़ को वैसा ही फॉलो कर रहे हैं? मैं आज देख रही हूँ इतने बिशप्स, इतने पादरी जो कि पैसा लेकर के चर्चों को बेच रहे हैं, चर्चेस की और स्कूल्स जो फिलॉन्थ्रोपिक वर्क के लिए बने हुए थे, उनसे पैसा उगाही का काम करते हैं।
क्या ये सब सही बातें हैं? मैं एक बोनाफाइड एंग्लिकन मेंबर हूँ, एंग्लिकन चर्च की सेक्रेटरी हूँ। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं लोगों को इस बारे में बताऊं कि कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ सही हो रहा है। मैं दोनों ही चीज़ें बताऊंगी, जो सही है वो भी बताऊंगी, जो गलत है वो भी बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रीस्ट या हमारे ब्रदर्स जो प्रीचिंग का काम कर रहे हैं, हीलिंग का काम कर रहे हैं, वो गलत हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियनिटी का नाम लेके या क्रिश्चियनिटी को आड़ बना करके अपने कुछ पर्सनल मोटिव्स पूरे कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि एंग्लिकन चर्च गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंग्लिकन चर्च को मान्यता देती है, पार्लियामेंट एक्ट से मान्यता देता है। तो मेरी ये प्रार्थना है पन्नालाल जी से कि आप इस चीज़ को पढ़ें, समझें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चर्च ऑफ इंडिया को, एंग्लिकन फेथ को मान्यता दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन सब कानूनों को अगर आप गलत कहेंगे तो आप पहले कानून को समझें, किसी अच्छे वकील से बात करें। अगर आपकी समस्या वहाँ समाधान नहीं हो पाई है तो आप हमारे पास आएँ। मैं एज सेक्रेटरी आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगी, बताऊंगी और इंडियन चर्च एक्ट का हवाला भी दूंगी और उसको ठीक तरह से कि आप उसको समझ पाएँ बताऊंगी कि आप इंडियन चर्च एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप समझ सकें। कितने लॉज हमारे बने हुए हैं। रिपीलमेंट ऑफ एक्ट क्या होता है वो भी आप समझिए कि रिपीलमेंट क्या होती है। आपने रिपीलमेंट कह दिया और 1948 में ये कह दिया कि एंग्लिकन चर्च ख़त्म हो गया, तो वहाँ एंग्लिकन चर्च ख़त्म नहीं होता है। क्या आपने समझा है? ये आपकी स्वयं के विवेक पर है। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप इस चीज़ को जब आप समझ लेंगे तो शायद ऐसा नहीं बोलेंगे। आज के वक्त में हमें बहुत समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि कठिन समय है और प्रभु का आगमन है, इसलिए इस तरह की चीज़ें उठ रही हैं। मत्ती 24:24 में लिखा है कि बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से तुमको बहकाएंगे। उस समय तुम चेतावनी में रहना, उस समय तुम अलर्ट रहना, कहीं बहकावे में ना आओ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन चीज़ों को समझें और आगे इस देश में सद्भावना बनाए रखें। धन्यवाद।